So we have finished chapter number 6, Dhyan Yoga. Now we are starting chapter number 7. We'll try to cover today श्लोक number 1 to 5. And जो chapter का नाम है वो है भगवत ज्ञान. तो अभी यहाँ से प्रभु हमें थोड़ा प्रमोशन दे रहा है. So he is taking us in a little bit higher stage of devotion. He's trying to introduce himself slowly and steadily. So this is very important chapter. So thank you once again everyone for joining us today in our Bhagavad Gita session. We'll start with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sadgrajatam Sahagana Raghunatham Satam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gautrise Namaha Shri Nityananda Avadhurtendu Vasudha Prana Vallabha Janava Jivitapatihi Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Shata Shriman Sachinandana Purvajaha Bhavonmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalipara He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunja Vihare राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू खुदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर दिखा वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everyone together. हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। Wonderful. One more time. Hare Krishna हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। Thank you so much. Thank you so much. So, what we have discussed last time, कोई बताएगा? ભરત મહારાજની સ્ટોરી કહેલી. Yes. કે એમને ડિયર પ્રત્યે પ્રેમ થઈ ગયેલો, પછી નેક્સ્ટ બર્થમાં એ ડિયર બનેલા ને ત્યાર પછી એમને તો બી પેલું પ્રીવિયસ બર્થનું યાદ હતું, એટલે પછી જ્યારે બીજું બર્થ મળ્યો ત્યારે તેમને શું કહેવાય કે ડિપ્રેશન મળ્યું. Yes. So Bhagavan says that I would never, the devotees who try to do little advancement onto the path of devotion, they will never get perished. उनका कभी नाश नहीं होता। और उसके लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया था भरत महाराज का कि he was temporarily fall down because of the attachment with deer, but then Krishna makes sure that his consciousness or his mati he carries for his next life, and he get a favorable environment and he advance from that point of view, and then finally he get back to Godhead, Krishna Loka. Perfect, wonderful, Mataji. Anyone else? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. Yes, Shailesh Prabhu. પ્રભુ પછી પાછલા જન્મની સ્મૃતિ માટે જે ભક્ત હોય તેમણે બીજા જન્મમાં વધારે કોશિશ કરવું નહીં પડે અને ત્યાંથી જ એમનું જીવન ભક્તિ માર્ગે આગળ વધે છે. પણ એના માટે એમની જે શક્તિ હોય, બુદ્ધિ શક્તિ, એ વાપરવાની હોય. તમે મોટા કુટુંબમાં જન્મ લેવ કે નાના કુટુંબમાં લે તે કોઈ બહુ મહત્વનું નથી, પણ તમે કયા રસ્તે આગળ વધો છો તે મહત્વનું છે. અને પછી યોગી અને સન્યાસી ની પ્રેક્ટિસ એના માટે આપણે વાત કરેલી હતી. એ યોગી તપસ્વીથી ઉપર હોય છે. તપસ્વી કર્મીજનથી ઉપર હોય છે. માટે યોગી બનવા ભગવાને કીધું. કર્મયોગી, જ્ઞાનયોગી અને ભક્તયોગી 3 પ્રકાર હોય છે. તેમાં ભક્તિયોગ જ બધાથી सर्वोत्तम છે એ ભગવાને કીધેલું હતું. वंडरफुल प्रभु. सो लास्ट श्लोक में भगवान ने, तब तक भगवान ने भक्ति योग को ऊपर नहीं रखा था. ही सेज दैट compared to all different kind of sadhak, he says that become a yogi, and then yogi has 3 categories, जैसे ज्ञान योगी, भक्ति योगी and karma yogi. And then in the last slok he says that in these 3 also the bhakti yogi is the best because they are very intimate to me and I am very intimate to them, right? ये उनका लास्ट श्लोक था. तो वहां पे भगवान ने ध्यान योग को खत्म किया. तो भगवान ने ध्यान की पूरी हमें अलग अलग रुचाएं बताई, लेकिन एंड में भगवान ने बोला कि योगी बनो. इन तीनों में से कोई भी एक योगी बन जाओ. फिर भगवान ने हिंट दिया कि नहीं, फिर इन तीनों में से भी द बेस्ट क्या है? द योग इन डिवोशन, अर्थात भक्ति योग. और वहां पे उन्होंने ध्यान को पूर्ण विराम दिया, ध्यान को उन्होंने ठहराया, ध्यान योग को. और फिर यहाँ से 7 पॉइंट चैप्टर नंबर 7 से भगवान उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमें कुछ और डिटेल में ले जाते हैं, राइट? So that's what we're going to start from today. Anyone else want to say something? हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes. प्रभु जी, अगर गुजराती में ना करके अगर हिंदी में करे, थोड़ा पूछे तो हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा.
No, but I was in Hindi only. नहीं, आप तो हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आगे बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता, या तो हमें गुजराती सीखनी पड़ेगी, यही लगता है। हाँ, ठीक है, अभी वो तो yeah. Actually, it's a recap going on, so I mean, like, it's up to the devotee, whichever they are comfortable, they can speak in that language. I cannot force anyone to speak in specific language. But yeah, that's a very valid point, and we'll request devotee to speak in Hindi if it is possible. But again, if you're comfortable in your native language, that's fine. Okay. I'm sorry about, I'm having little fever and all. So भगवान यहाँ से शुरू कर रहे हैं भगवत ज्ञान. So chapter number 7, text number 1. श्री भगवान उवाच मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युज्जन्म दाश्रयः असंशयं समग्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा कि हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह हाँ, भगवान ने कहा कि प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो. Now भगवान is taking us to the more closeness. So हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह, how, मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास द्वारा करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो. यहाँ पे भगवान भक्ति योग करते हुए हम कैसे भगवान को विदाउट डिल्यूजन, विदाउट कंफ्यूजन समझ सकते हैं, ये भगवान अर्जुन को अभी समझाना शुरू कर रहे हैं. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि भागवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भक्ति की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, हाउ द डिवोशन इट इज. कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वो इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इनका वर्णन इस चैप्टर में हुआ है. इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली जीव जो है वो कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण. और 4 प्रकार के भाग्य विहीन जीव है जो कृष्ण की शरण में कभी नहीं आ सकते. राइट. सो प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात उनको मटेरियल नहीं बताया गया, उनको स्पिरिचुअल बताया गया है. और जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है. तो भगवान ने आगे के जो 6 चैप्टर है उसमें आत्मा को क्या बताया है, मटेरियल नहीं बताया, मैटर नहीं बताया, आत्मा को उन्होंने स्पिरिचुअल बताया हुआ. राइट. और कैसे अलग अलग जरियों से वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं वो भी भगवान ने बताया. लेकिन 6ठे अध्याय के अंत में एज वी डिस्कस यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान ने क्या कहा है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च योग है. दिस इज द लास्ट श्लोका ही वाज एक्सप्लेन, राइट, कि व्हाट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना. मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को 100% जान सकता है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो भगवान को 100% जान सकता है या पा सकता है. That is what he put a conclusion at the end of chapter number 6 in the last sloka, right? So 7.2 में भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञान हदम व्यक्षाम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह मुयोज्ञज ज्ञात्वयम अवशिष्यते. कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से अभूतपूर्व, जो पहले नहीं कहा गया, तथा दिव्य अर्थात ट्रांसेंडेंटल ज्ञान की बात करूंगा. इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा. भगवान अर्जुन को कह रहे हैं व्हाट ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन टू अर्जुना इज समथिंग व्हिच इज ट्रांसेंडेंटल एंड व्हिच इज नेवर बीन टोल्ड बिफोर.
अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से 100% अभूतपूर्व, जो पहले नहीं कहा गया, वैसा और दिव्य ट्रांसेंडेंटल नॉलेज तुम्हें प्रदान करूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहे। That's what Krishna is telling. So Krishna is giving the importance of this chapter. 7.3 मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मा वेति तत्वतः। किस कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, राइट। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी कोई एक विरला होता है जो मुझे वास्तव में जान पाता है। In your surrounding also you have seen many people, they are not even inclined towards the devotional service. Forget about devotional service. वो एक आध्यात्मिक जीवन के लिए भी थोड़े भी लालायित नहीं होते। दे आर लिविंग अ लाइफ लाइक एनिमल, राइट। तो बहुत सारे लोगों में से आप देखोगे, आपके आसपास अराउंड 10 पीपल है, सो उसमें से आपको एक इंसान मिलेगा जो आपको लगेगा कि भैया नहीं, देखो, he is trying to live a pious life, he is trying to live a आध्यात्मिक जीवन। और उसमें से भी इतने सारे फैक्टर्स हैं, किसी को सिद्धि चाहिए, किसी को योग चाहिए, कोई भक्ति इसलिए कर रहा है, या कोई पूजा पाठ अनुष्ठान इसलिए कर रहा है ताकि इसको उससे कुछ चाहिए, यहाँ पे इतना चढ़ावा चढ़ा दो, यहाँ पे ये कर दो, नाम रख दो भगवान के नाम से, बालाजी टेलीफिल्म्स, बट देन they are getting what they want is the money out of it, the fruit out of it। तो उसमें से बहुत सारे लोगों में से एक विरला ही ऐसा निकलता है, भगवान कह रहे हैं, जो मुझे वास्तव में जान पाता है। सही सिमिलर चीज भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अधः। कि भौतिक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों के द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवाओं से प्रसन्न होकर वे भक्तों के आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ हिंदी, बट इन शॉर्ट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि मटेरियल सेंस से आप भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप भगवान को अपनी दिव्य सेवा प्रदान करते हो तो भगवान आपके ऊपर कृपा करके खुद को जानने के लिए आपको समर्पित करते हैं। तो मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला ही मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, एज वी डिस्कस, राइट। शरीर क्या है, व्हाट इज दिस बॉडी, व्हाट इज दिस सोल, और परम सत्य क्या है, कि भैया हम यहाँ पे क्यों हैं, व्हाट इज द परम सत्य, व्हाई वी आर हियर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, व्हाट वी सपोज टू डू हियर, राइट। सामान्यतः मानव क्या करता है कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, दैट इज द एनिमल। ईटिंग मीन्स खाना, स्लीपिंग अर्थात सोना, मेटिंग अर्थात सेक्सुअल लाइफ, डिफेंडिंग अर्थात अपने और अपने परिवारजनों की रक्षा करना, इसी में अपना जीवन व्यतीत करता है। इससे ऊपर उठ के कोई दिव्य ज्ञान के लिए थोड़ा भी प्रयत्नशील नहीं होता, अर्थात इसमें थोड़ा भी रुचि नहीं रखता। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि इन चारों से निकलने वाला बहुत कम होते हैं, हजारों में से कुछ ही लोग होते हैं जो इन चार प्रक्रिया से ऊपर उठ के आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उसमें से भी बहुत कम होते हैं जो मुझे जानने में समर्थ होते हैं। और इसीलिए भगवान अर्जुन के द्वारा ये जो दिव्य ज्ञान है वो हम सबकी ओर प्रकाशित कर रहे ताकि हम उसे समझ पाए। 7.4 यहाँ पे भगवान शुरू कर रहे ज्ञान ट्रांसफर करना। सो व्हाट इज दैट नॉलेज? द फर्स्ट नॉलेज ही हैज गिवन इज भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टता भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभिन्न मेरी अपरा प्रकृतियां है। देखिए भगवान की 2 प्रकृति है, एक अपरा और एक परा।
तो इस श्लोक में भगवान ने अपरा के बारे में बताया, आगे वो परा के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और 3 भी चीज है भगवान ने इसमें शामिल नहीं की। मन, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये 8 प्रकार से विभिन्न मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो इसे समझने के लिए नारद पंचरात्रि का एक श्लोक है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विदुः, एकं तु महता शास्त्र, द्वितीयं त्व अंद संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतास्थं तानि त्यानि ज्ञत्वा विमुच्यते। कि फॉर दिस मटेरियल क्रिएशन भगवान ने अपना एक्सपांशन किया, किसमें? 3 महाविष्णु में। Now this is what we're going to discuss here, actually the first chapter of it's in a Brahma Samhita. So ये ब्रह्म संहिता का एक्सट्रैक्ट जो भी हम समझ रहे हैं यहाँ पे। So for the material creation, Lord Krishna भगवान ने अपने आप को 3 विष्णु में एक्सपांड किया। The first one is called the Mahavishnu, who creates the total material energy known as the Mahatattva. The second is called the Garbhodakshayi Vishnu. हम इसको अच्छे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मैं जिस श्लोक को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। The second is called the Garbhodakshayi Vishnu, who enter into the universe to create the diversity into each of them. And the third is Kriyodakshayi Vishnu, is diffused as a super soul into each and every living entity. अब मैं जो आगे समझाऊंगा, अगर यहाँ पे आपको ना समझ पड़े तो प्लीज मुझे रोक लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Many people ask me this thing, but I was waiting for right shlok to come in, so this is the reason I'm putting here. Everyone can see this, right? Okay. Okay. So जो आगे के श्लोक में कहा गया, भगवान ने कहा कि अपनी परा प्रकृति, अपनी अपरा प्रकृति, जो भगवान की अपरा प्रकृति है। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज गोलोक वृंदावन। एवरीवन कैन सी माय मार्कर, राइट? मुझे समझ नहीं रहा, सो यू कैन जस्ट स्पीक यस और नो। Yes, Okay. Prabhu. Perfect. So this is the spiritual world which is called Golok Vrindavan. ये जो है, ये सब जो है outer sphere, it is called the different kind of Vaikuntha. हम कहते हैं ना वैकुंठ धाम जाना है। So Vaikunt is not just one kingdom. There are different Vaikunt for different expansion of the Lord. जैसे नरसिंह देव का अलग लोक है, वराह देव का अलग लोक है, मत्स्य देव का अलग लोक है। सो ये जितने भगवान के अवतार है, उनके अलग अलग वैकुंठ प्लैनेट्स बने हुए हैं। तो जो जिनके भक्त हैं, वो जब यहाँ से निकलते हैं तो उस धाम में जाके उन ठाकुर जी के साथ निवास करते हैं। ये जो है, ये साकेत धाम है, ये ऐश्वर्य धाम है, ये जिसे अयोध्या कहा गया है। सो ये अयोध्या, ये मथुरा, ये वृंदावन, ये सब एक्चुअली द सांकेत धाम ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ से इंडिया जाता है, तो वो अपने हिसाब से उनका रूम सिलेक्ट होता है, उसका वॉलपेपर डिजाइन होता है, उनका खाना लगता है। वैसे ही जब ठाकुर जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इस धरातल पे आते हैं, तो उनके हिसाब से वो जगह बनाई जाती है। जो जैसे गोलोक वृंदावन है, तो उसके हिसाब से ये गोलोक वृंदावन बनाया जाएगा, राइट? Someone is not in mute, we can mute them please. प्रज्ञा होता है। Perfect. Yes. So स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर
that is called the Lord of the Rings, which is called the कैलाश। यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। तो इसीलिए आपने जब गुजरात में जब आरती है, आई डोंट नो सेम थिंग इन हिंदी बेल्ट इन पंजाब में, लाइक दिल्ली एंड ऑल, वी हैव द आरती ऑफ भोलेनाथ वेयर वी सेज दैट भोला बुधर ने बजता भवसागर तरसो हरि चरणे जासो, because Lord Shiva can give you a liberation and put you at the shelter of Lord. So यहाँ पे भगवान शिव का धाम है। और फिर इसके नीचे जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, द लाइट्स, राइट, यू सी द लाइट्स, दिस इज कॉल्ड द ब्रह्म ज्योति। ये है द पीपल हु वर्शिप इम्पर्सनल ब्राह्मण, अर्थात जो लाइट की पूजा करते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमारीज और मुस्लिम, राइट, दे वर्शिप द लाइट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ब्रह्म ज्योति, ये उनकी पूजा करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये भगवान के शरीर श्रेयंग से निकला हुआ तेज पुंज है जो बाहर आता है। सो दे सी द लाइट्स, जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और दूर से ट्रेन आ रही है तो यू सी द लाइट्स ऑफ द इंजन फर्स्ट, राइट, लेकिन इंजन तो बाद में आता है। सो सिमिलरली भगवान जब दूर से दिखते हैं तो उनकी लाइट आपको दिखती है। सो द पीपल हु वर्शिप Brahma Jyoti, they villain in this one. When they get the moksha, they villain in this Brahma Jyoti. Similarly, the people who get killed by Krishna, जो भगवान से जिनका वध होता है, तो हम कहते हैं ना कि आपने भक्ति करके क्या तीर उखाड़ लिए, क्योंकि भगवान तो जिसे मारते हैं उसे भी तारते हैं। तो they are also getting liberated. Yes, they are getting liberated, but they are getting liberation in the Brahma Jyoti. जबकि भक्त का लिबरेशन कहाँ पे होता है? इन सब वैकुंठ धामों में या भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में, राइट। सो दिस इज ऑल, दिस एंटायर कॉल्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो भक्त को यहाँ पे जगह मिलती है, जबकि भगवान जिसे मारते हैं उसे यहाँ पे जगह मिलती है ब्रह्म ज्योति में। दे लॉस देयर एग्जिस्टेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जिसको भगवान मारते हैं वो अपना एग्जिस्टेंस खो देता है। संदीप संदीप नहीं रहेगा यहाँ पे जाके, बस एक लाइट बन जाएगा। जबकि संदीप यहाँ पे जाएगा तो ये भगवान के धाम में कुछ ना कुछ उसको सेवा मिलेगी, भगवान के साथ खेलेगा, भगवान के साथ रहेगा, भगवान के लिए खाना बनाएगा, भगवान के लिए वस्त्र बनाएगा। सो ही हैज हिज ओन ड्यूटी, ही डोंट लूज हिज एग्जिस्टेंस। यहाँ पे वो अपना एग्जिस्टेंस लूज कर देता है। अब ये जो है, जो पहले उसमें कहा कि भगवान अपने आप को 3 महाविष्णु में ट्रांसफर करते हैं। द फर्स्ट वन इज कर्णोदक्षाय विष्णु, आपको ये दिख रहा है कर्णोदक्षाय विष्णु, द फर्स्ट एक्सपांशन। अब क्या है कि भगवान, जैसे आपने ये सबने किया होगा जब बच्चे हो गए, तब ठंड के अंदर जब अपना if you do like this, if you breathe out, you see so many particles, right? You see that in the sunlight. Similarly, when the Mahavishnu breathe out, there are so many particles comes out of it. Those particles are nothing but the separate universe. So innumerable universe, असंख्य यूनिवर्स भगवान जब ब्रीथ आउट करते हैं तब उसके बाहर निकलते हैं, राइट? ये सब यूनिवर्स है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक यूनिवर्स का। ये जो एक यूनिवर्स है उसमें से एक बबल, देयर आर सो मेनी बबल्स कम्स आउट, देयर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्स, उसमें से एक बबल का अगर हम डाइसेक्शन करते हैं तो ये बनता है एक यूनिवर्स। एक यूनिवर्स के अंदर क्या होता है, वापस से वही महाविष्णु अपने आप को एक्सपांड करके जो जो कर्णोदक्षाई विष्णु है वो अपने आप को एक्सपांशन करके गर्भोदक्षाई विष्णु बनते हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल प्रकट होता है, यू कैन फॉलो माय ट्रिगर। और यहाँ कमल के ऊपर ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मदेव इज द इंजीनियर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। ये ब्रह्मदेव क्या करते हैं, देन यू गो टू दिस स्लाइड, राइट। ये ब्रह्मदेव क्या करते हैं, ये पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। देखो यहाँ पे ब्रह्मलोक है, यहाँ पे ब्रह्मदेव बैठे हुए हैं, ये फिर सृष्टि की रचना करते हैं। हम कहाँ पे है, हम यहाँ पे है, हम भूलोक पे है। तो ये ऊपर के लोग बनाते हैं, नीचे के लोग बनाते हैं, राइट। ऊपर के लोग क्या है, जैसे भूर भूवर, स्वर्ग, महर, जन, तप एंड सत्य। सत्य उनका लोक है। और नीचे ही बनाते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एंड पाताल। ये सब नीचे के लोग हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि नीचे के लोग राक्षस है या उनको सींग आ जाता है, ऑल दिस थिंग वी सी इन द सीरियल। द डिफरेंस बिटवीन द अपर प्लैनेट्स एंड द लोअर प्लैनेट्स इज, यहाँ पे ऑप्युलेंस इतना ही रहता है जितना अपर प्लैनेट्स में रहता है।
लेकिन यहाँ पे it is similar example. If you see the people who is so wealthy but they are very demoniac, in the sense that इंसानियत खत्म हो गई है, अंधेरे में जीते हैं, वैसा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं है, पर दे आर वेरी अपील्ड, और यहाँ पे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी थोड़ा भी पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट प्लेनेट टू लिव और गेट एडवांसमेंट इज द भूलोक, क्योंकि यहाँ पे आपको साधु महात्मा संत, ये दिस इज लाइक अ लॉन्च पैड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आप सीधा यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके पास एक्सेस रहेगा स्पिरिचुअल लाइफ का या स्पिरिचुअल नॉलेज का, बट द प्रॉब्लम इज द ऑपुलेंस इज सो हाई दैट वी गेट डिविएटेड वेरी इजीली, राइट? सेम एग्जांपल अगर आपको दूं कि अगर मैं यू सी दैट नॉर्मली कि जब आप भक्ति कर रहे हो व्हेन यू आर इन आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप पूरे दिन में कुछ माला या भगवान का नाम या कुछ जप कर पा रहे हो। जब आप भारत जाते हो, आप मित्रों के साथ रहते हो, परिवारजनों के साथ रहते हो, यू हैव सो मेनी सोशल लाइफ, you hardly able to focus on your devotional life. It is very practical, you have seen that. क्यों? क्योंकि आसपास माया का आवरण बहुत प्रबल है, लोभावनी वाली चीजें बहुत, मतलब in terms of friends, in terms of food, in terms of family and all these things. Similarly, when you go on the higher planetary system, यहाँ पे opulence बहुत ज्यादा है, सेंस एंजॉयमेंट की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडवांसमेंट। इसीलिए ज्यादातर क्या होता है कि लोग स्वर्ग लोग तो चले जाते हैं, लेकिन सेंस एंजॉयमेंट में इतने पड़ जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू गेट एडवांसमेंट और गेट आउट ऑफ दिस स्वर्ग एंड गोइंग आउट ऑफ द गोइंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो जैसे ही उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वो वापस से इस भूमंडल पे आ जाते हैं, राइट? सो एनीवे, सो वैसे ही इन्यूमरेबल जो यूनिवर्स है उसके अंदर ब्रह्मदेव जन्म लेते, ब्रह्मदेव जन्म लेते हैं, और हर यूनिवर्स में ये सब लोक बनाए जाते हैं, और उस सब लोकों में अलग अलग जीव को ट्रांसफर किया जाता है। और फिर एक तीसरा एक्सपांशन, हमने दो एक्सपांशन की बात की, राइट? कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, और अब एक क्षीरोदक्षाई जो है वो तीसरा एक्सपांशन है। वो क्या है? परमात्मा जो आपके साथ आपके शरीर में निवास करते हैं आपके पूरे लाइफ स्पान तक। सो देयर आर थ्री विष्णु, राइट? ये भगवान की अपरा सृष्टि है। कौन सी? ये वाली, ये वाली, राइट? लेकिन ये भगवान की अपरा सृष्टि है। एनी क्वेश्चन इन दिस वन? मुझे एक बार ये तीनों विष्णुस को आप प्लीज दोबारा से बताएंगे कि वो क्या क्या करते हैं। देखिए माता जी, सो यहाँ तक आपको समझ गया, राइट? टिल दिस वन, दिस इज अवर, यहाँ से ऊपर आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और फिर यहाँ से नीचे जो है ये आपका मटेरियल वर्ल्ड है। अब मटेरियल वर्ल्ड में भगवान जो है ये तीन विष्णु के रूप में एक्सपांड करते हैं खुद को। द फर्स्ट वन इज कर्णोदक्षाई विष्णु, दिस इज कॉल्ड द महाविष्णु और महातत्व, राइट? क्या होता है कि ये व्हेन ही ब्रीथ आउट innumerable, जैसे हम breathe out करते हैं, there are lot of particles come out of from our mouth or our nose and all these things. When Mahavishnu breathe out, there are lot of bubbles comes out, right? These bubbles are nothing but these are innumerable universes, right? हर यूनिवर्स के अंदर then he expand himself, वो खुद expand करके क्या बनते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु। Same महाविष्णु expand himself and become a गर्भोदक्षाई विष्णु, right? गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल प्रकट होता है, और उस कमल के ऊपर जन्म लेते हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव इज द इंजीनियर ऑफ दिस एंटायर प्लैनेटरी सिस्टम। ब्रह्मदेव क्या करते हैं फिर? ब्रह्मदेव इन यूनिवर्स 14 भुवनों का निर्माण करते हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट ऑप्युलेंस है, डिफरेंट जैसे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे यहाँ खारे पानी का समुद्र है, किसी लोग के अंदर शुगर कैन का समुद्र है, किसी लोग के अंदर दूध का समुद्र है, right? There are different type of oceans in different planetary system. हमें अजीब लगता है कि यार शुगर कैन के जूस का भी ओशन हो सकता है, यस। जैसे किसी लोग को ये लगता है कि खारे पानी का ओशन हो सकता है, यस, इट इज ऑन दिस प्लैनेट। सो different planets have different kind of opulence and different kind of characteristic. तो ये ब्रह्मदेव निर्माण करते हैं, और ऐसा ही हर एक यूनिवर्स में होता है, ये जितने बबल्स है ना उसमें। फिर क्या होता है? अब बारी आई इनमें रहने वालों के लिए। तो जीव को जब इसमें ट्रांसफर किया जाता है, भगवान जब जीव को यहाँ पे जन्म देते हैं, अब जन्म की भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। जैसे टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जिसके अंदर समझाया गया है कि there are two kind of
living entities. One is in the water, one is out of the water. In the outer of the water also there is movable, non-movable. In the movable also there is 4 legs and 2 legs. In the 2 legs also there is something called Aryan and Anaryan. And the Aryan is the people technically who is progressing towards the spiritual life. तो ये जितने 8400,000 स्पीसीज है, जितने लिविंग एंटिटीज हैं, जो भगवान ने इस यूनिवर्स के अंदर, अपनी बात कर रहा हूँ, हर एक यूनिवर्स के अलग अलग काउंट्स रहेंगे, पर मैं अपने यूनिवर्स नहीं, सॉरी, अपने भूमंडल की बात कर रहा हूँ, प्लेनेट अर्थ की बात कर रहा हूँ, right? तो उसमें 8400,000 स्पीसीज है, और हर एक के साथ भगवान खुद को एक परमात्मा के रूप से उस जीव के साथ विचरण करते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, सुपर सोल कहते हैं। और तीसरा विष्णु है, उसी का नाम, इसे कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। सो फर्स्ट इज कर्णोदक्षाई विच इज महाविष्णु, महातत्व। सेकंड इज गर्भोदक्षाई, जो हर एक यूनिवर्स में ट्रांसफर होते हैं और उनके नाभि से कमल प्रकट होता है, और जहाँ पे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, देन ही क्रिएट ऑल द यूनिवर्स। और फिर हर जीव के साथ जो भगवान या सुपर सोल ट्रांसफर होते हैं, वो तीसरा एक्सपांशन है उसका, राइट? इज इट क्लियर ना? સંદીપ પ્રભુ, हम्म। બધા પ્લાનેટરી સિસ્ટમમાં અલગ અલગ બ્રહ્માદેવ હોય કે પછી એક જ હોય? બધામાં અલગ અલગ હોય બધા જે યુનિવર્સ હોય એમાં? Yes, every universe is a different Brahmadev. Say for example, today some of the politician or some of the leader or some of the person who is a very good administrator, who is very pious, who is a very good administrator, after his 100 lifetime, if he follow the varnashram appropriately, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन अगर वो 100 लाइफ स्पैन तक बहुत अच्छे से करता है, देन ही इज एबल टू प्रमोट टू टेक अ बर्थ एज अ ब्रह्मा। तो फिर भगवान उसे इन्हीं किसी प्लैनेटरी सिस्टम में ब्रह्म का जन्म देते हैं, ही बिकम अ ब्रह्मा। वैसे ही हर एक लोग में इंद्र अलग अलग है, वायुदेव अलग अलग है, सूर्यदेव अलग अलग है। अगर आप कोई अच्छा, इफ यू आर वेरी गुड इन समथिंग, अगर आपके कर्म कुछ ऐसे हैं कि यू एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, टुमारो यू कैन बी अ डेमिगॉड, टुमारो यू कैन बी अ इंद्र, टुमारो यू कैन बी अ सन गॉड, टुमारो यू कैन बी अ शनिदेव, टुमारो यू कैन बी अ ब्रह्मदेव। सो एवरी यूनिवर्स हैज अ ब्रह्मदेव। से वेरी गुड एग्जांपल कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, चैप्टर नंबर 10 श्रीमद् भागवतम, कि जब ब्रह्म ने ब्रह्म विमोहन हो गए, अर्थात ही वाज इल्यूजन, कि भैया ये छोटा सा बालक कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो किसी के मुंह से खाना खा रहा है, इसके मुंह से कोई उठा के खाना खा रहा है, कोई उसके कंधे पे चढ़ के भाग रहा है। ही कैन नॉट बी अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बिकॉज उसको उसका टेस्टिफाई करने के लिए, उसको उसका एग्जाम लेने के लिए ब्रह्मदेव ने सभी बच्चों को गायब कर दिया। एंड देन कृष्णा एक्सपांड हिमसेल्फ इनटू दोस ग्वाल बाल एंड ऑल, एवरीवन नोज दिस कथा। और उसी समय क्या होता है, 1 साल के बाद जब ब्रह्मा आते हैं तो देखते हैं कि वो तो सब वैसे के वैसे ही चल रहा है। Then he got a realization कि I made a big mistake, and he come into the shelter of Krishna। और जब वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तब वो देखते हैं कि there are innumerable हंस प्रकट होते हैं, और हर एक पे अलग अलग ब्रह्मा आके भगवान को नमन करते हैं। Then he realized, Krishna says that you are the Brahma for this planet, but there are innumerable planets, or there are innumerable Brahma, right? But I am the only one. So every universe has a different Brahma. हर जीव ब्रह्मा बन सकता है। Do they have the lifespan too, like this many years? Yes, they have a life. Yes, every demigod has a lifespan. The oldest, the biggest lifespan is Brahma Dev having. So देखिए, जैसे ऊपर की प्लैनेट जैसे बढ़ते जाते हैं ना, जैसे स्वर्ग लोक है तो वहां पे लाइफ स्पाइन है, से फॉर एग्जांपल 300 साल, तो ऊपर महर लोक का लाइफ स्पाइन और बढ़ता है, जनलोक का लाइफ स्पाइन और बढ़ता है, तपलोक अर्थात ब्रह्मलोक, इन पे जो लोग है उनका लाइफ स्पाइन और बढ़ता है, और ब्रह्मा जो है उनका लाइफ स्पाइन सबसे ज्यादा है। इसीलिए वी हैव सीन दैट the Brahma got the white beard because he's the oldest being on this planet. He's the first born being on this planet. He's the first soul who took a birth, who's the first soul who came into this material world, right? So he's the oldest living being, right? And he's the last one who's going to die as well. So that's why Brahma has a beard.
But Lord Shiva and Lord Narayan, Lord Vishnu, Lord Krishna, they are evergreen, youthful, because they don't come under this sphere of material world. Any further questions? Perfect. So भगवान की ये अपरा प्रकृति है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये मेरी अपरा प्रकृति। अब नेक्स्ट में भगवान क्या कह रहे हैं कि अपरेयम इतस्ते अव्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त, भगवान ने पहले अपना मटेरियल एक्सपांशन समझाया, अब कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, मेरी एक और भी शक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपनी मटेरियल एक्सपांशन समझाया, मेरी एक और भी शक्ति है, राइट, जो उन जीवों से युक्त है जो इन भौतिक जगत का या उनके साधनों का विदोहन कर रही है, अर्थात जो उनको भोग कर रही है, राइट। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, a very good statement given by Prabhupada, quoted many times. It is quoted by Pierre that we are not a human being having a spiritual experience. We are the spiritual being having a human experience. कि हम human being नहीं है जो spiritual experience कर रहे हैं अभी, right? हम थोड़ी देर बाद बैठे हैं, थोड़ा नाम जप कर लिया, थोड़ा भगवान की साधना कर ली, थोड़ा ध्यान कर लिया, oh I'm feeling very good, I'm feeling little spiritualized. But नहीं, actually we are not having spiritual experience. टेक्निकली वी आर इटर्नल स्पिरिचुअल बीइंग। हम भगवान की यही पराशक्ति है, राइट। भगवान ने कहा कि ये मेरी एक पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, यानी वी आर भगवान की पराशक्ति हु इज टेम्पररीली हैविंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम इस बॉडी के अंदर इतने कंडीशन है कि हम एक्चुअली दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वी आर नॉट सपोज टू बी हियर, राइट। सो इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है, जीव परमेश्वर की पराशक्ति है, मींस खुद की भगवान की शक्ति है, हम खुद भगवान के अंश है, हम खुद भगवान के वंश है, हु इज सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा, हु केम आउट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय सो एंड सो रीजन। अपराशक्ति भगवान की क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्ति का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। क्या कहा कि जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए फॉर आवर ओन सेक हम क्या करते हैं, इन सब भगवान की जो अपराशक्ति है, मींस भगवान का जो मटेरियल एक्सपांशन है उसका विदोहन कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। और हमारे ही कारण, हमारे ही लिए वी आर द रीजन कि ये भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, बिकॉज वी वांट टू गेट आउट ऑफ दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देखिए, कोई बच्चा अपने लिए टॉय मांगता है तो हम एक छोटा सा अगर कहते हैं कि मुझे आपके जैसा किचन चाहिए मम्मी, बहुत सारी लड़कियां कहती है, तो हम छोटा सा टॉय किचन ला के रख देते हैं। सो वैसे ही भगवान ने हमारे लिए पूरा मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, बिकॉज वो भगवान है। ये पूरा